So, good afternoon, everyone. We will start with the meet. So, welcome to H2 and FY26 Analyst Meet of Womancart Limited. We have on the call Mr. Madhusudan Pawar, Managing Director, Chief Financial Officer, Ms. Prerna Pawar, Director. We must remind you that the discussion on today's call may include certain forward-looking statement and must be therefore viewed in conjunction with the risk that company faces. I will now request Mr. Madhusudan sir to go through the financial and business update, subsequent to which we will open the floor for the question and answer. All the participants, it's a reminder that you will be on the mute mode and there will be an opportunity for you to ask question after the presentation conclude. Participants are requested to raise their hand for question. Please note that the call is being recorded. Thank you and over to you, sir. Thank you, Priyasi. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for joining this meeting. And thank you, Go India Advisor, for giving this opportunity to connect with the shareholders and all the respectable people. In next 15 minutes, I try to brief the road, brief about the financials of the company since last 5 years, whatever the journey of the company and the future roadmap of the journey for next 3 years. If we talk about the financials of the company, we have a small journey of 5 years. Uh, Coincidentally, 2.5 years is before we make this company limited company, and then we bring the IPO, and 2.5 years post IPO. If we talk about the top line of the company since last 5 years, in the first year it was 4 crores, then 9 crores, then we did 27 crores. In the fourth year, we did 59 crores, and March 26, we closed with 134 crores. And if you talk about the in the same way of about the bottom line, though we started the journey with very 4 crores with the uh, bottom line of 20 lakh rupees, then we did 59 crores with bottom line of we did second year we did the uh, 9 crores with the bottom line of 59 lakh rupees. Then it's uh, 4 crores bottom line. Then we did when we did the turnover of 59 crores, the bottom line was 7 crores. And in the this year, we reached to the 12 crores. This I am talking about the profit before taxes. So this is the financials of the company with the hard work of my all team members. We Coincidentally, we do 2x every year. So this is about the growth chart of the company. Now I share some the how this company will started, though it's my dream project, how the idea comes to make this company. I was into the e-commerce business and understanding the e-commerce business. I thought I found there was a huge potential in the e-commerce. So though with the idea of this, though we make this company in 2018, but with my other commitments, able to make this company operational just 5 years before. When I made this company, I have a thought of making women cards specially for the women. Which this is I want to develop a platform in which everything which a woman requires uh, is available on this platform. With the again by chance, by luck, I have three generations with me: my mother, my wife, and my daughter. So I used to buy the things with them, and with that I understand the psychology of the woman, how she buy the things and how she look forward for the buying when she go for the buying. So with this thought process, I started this woman card. Initially, I thought I started this as an e-commerce company. It's an aggregator place where we provide everything to the woman. It's either she needs cosmetics, personal care, dresses, jewelry, footwear, or anything which she requires. When I gradually started this company, I found that it was very tough to compete with my competitors. So, with sitting with my team members,
and making brainstorming with my Prerna, my daughter, who is also the director, my wife, she is also the director. We try to find something which makes women car different from the other marketplaces. And finally, we got that solution. We made this company as a quick delivery model. Uh, because of the limited resources, we started this in Delhi NCR. Gentlemen, honestly, this idea works so well. At the moment, we reach to the people. If we talk about the Delhi NCR, we have a population of 3.5 CR approx. Women Cart is the only company which is delivering the products in 2 hours to anyone who makes an order in Delhi NCR. We have a own team of riders, approx 25 riders. The moment we get the order, we plan our technology in such a way that they pick up the product from the warehouses and reach to the end customers. Again, you may ask that there are other companies who are doing this, like Blinkits are there and other companies are there. But I can say, use this statement in front of all of you that Woman Cart is someone which is delivering fashion in 2 hours. Like we have a jewelry which is our own brand, dresses, not only the dresses which a woman wear used to wear when she goes to office and all. We provide a huge range of party wear dresses with the sizes also, like small, medium, large, XL to XL. Then we have a footwear, a good variety of a footwear. Then we have a, again there are some more categories which we add on into that. For that we explain you later. But this is a company which is giving 2 hours delivery in Delhi NCR. The second uh, principle, or we can say the second strength of this the company is that we are providing the quality products at the reasonable prices. While setting the price policy of the company, we set the prices in such a way that of course it covers my expenses, it covers the growth of the company, but it should be the reasonable one. Every end customer, for the growth of a company, I found with my past experience, it is an end customer who make the company bigger. So I give due respect to the feeling of my customers. Any of my customer who buy either from the stores or from the e-commerce, they have a feeling that the woman cart is giving a products at a reasonable prices. So this is a second strength. Third, we believe in the quality. We try to make the things good quality because we procure from the best of the vendors. If they have any kind of issue, though the no issues come with regard to the quality, but let's assume 1 out of 1,000, if have any issue, our team, our sales people, our backend team will take care of their quality, and if possible, we even change the product because we are very confident about the quality of the product. Next, m- uh, being Prerna, my wife, and the other marketing team also keep updating the new ideas, new fashion which is going into the market. When suppose it's a marriage time, so what are the dresses which a woman required for the for a mehendi ceremony? What a woman requires for the sagan ceremony? So these are the things we keep updating every time. Similarly, if you talk about the jewelry, we have all variety of the jewelry like American jewelry, then we have a kundan, we have a uh, temple jewelry, oxidized, all kind of jewelries, and with the complete range. What I am trying to do or I am trying to achieve with the women cart is I want to make the showroom available at home for the women. We first acquire the confidence of a woman that the quality of the products are good. For that, we have 8 stores and one kiosk, 9 stores actually in Delhi NCR. And these 9 stores are at the different points. In these stores, we make the products available from daily use to the party wear. We have a products, we have a dresses start from 3,000 and we have a dresses which goes to up to 2 lakh.
rupees. So when a lady comes to our store, she get dressed for the party wear, she get dressed for the everything for every kind of a occasion. So once she gets that kind of a confidence that the products are quality, we keep the same prices at our e-commerce. If you look into the other some companies, I'm not giving the name, I'm not specifying the name. Most of the companies have the price policy different for the stores and different for the online. But Women Cart, if you check cross, we have a same price policy for all my stores, even for my online if the same products are available on the online. The thought process is if any lady buy the product from online for any reason, she finds it's not mm, fit with her outlook and whatever the reason, and she want to make a change. Our system allow her to go to the store and in for a period of say 7 days, she can get the product changed there also. So this is another thing. We try to facilitate my end customer about the buying thing. So this is another thing which we are giving them. Then with though at the store also we have of course option. We have trial rooms there. She can choose the product now through online also we are trying to make the availables try and buy means she can order two products, she can order three products. My delivery boy goes there. If you want to some take time, we allow her to be changed at that time and pick up one of the product what she really wants to buy. So these are the things which we try to make available to my end customers. The only thing which my backend team also take, I say Women Cart is giving the happiest feel to the end customer because repetition is so good there. So that is the another thing which we are doing strategically. In this year also, if you talk, we put more stress, we put more pressure, we put more strategically on the customer acquisition. So even because of the this geopolitics and whatever this, we have some increase in the cost of the products, but we make the products available to the customers at a reasonable prices, which help us to increase the top line and to make the products available to the more customers. Apart from this, fashion, another category which we have really worked very hard on that is the kitchen accessories. We make women all the kitchen accessories what she require at the women cart. So if you look at the women cart site, we have also two stores for this where all the kitchen accessories are available there. Again, we believe there if you quality of the product, good designing, good creativity. If you talk about the steel products, we use the quality of 304 so that the quality remains the best of the best. And if I, with my personal thought, women are caring about herself, about her uh, fashion, about her outlook. She also take care of about the kids also, specifically up to the age of 10. So in that also, this year we introduce another area which is in the name of Blue X Junior, where we keep available the products like school bags, lunch boxes, tiffins, and then other accessories which a woman require for their kids up to the age of 10. So the gentleman, the whole thought of this woman cart is to make what a woman actually requires, whatever she requires for going to the office, for going to some social event. If you talk about the house, what she requires, her kitchen, what she requires, her room, what she requires for her changing room, anything she requires, woman cart try to make it available. My thought process is woman cart and the woman needs is to be used as a synonymous. Another, by ending with this my whole discussion, we did another uh, step in this that we also have start Women Card Australia. We have a separate site womencard.com.au which makes the products available in Australia. Here again, I am giving the one statement. This is the site which makes fashion
available in Australia. We have all good quality dresses, ethnic dresses, according to again events, footwear, nightwears, artificial jewelry available at Australia, and that also doing very good. We are getting good number in Australia. We are getting very good number of orders from all the places like whether it's Melbourne, Sydney, Perth. So again, Women Cart has made their presence in Australia also. So this is the journey which we have done in last 5 years. Now I ask Prayasi, any of the people who want to be understand any of the questions we have. With me, my daughter Prerna is there. She is also the director of the company. So we are here to give the answer of your questions. Hello everyone. Uh, So, Prasad, please take it forward from yeah. here. Thank you, sir. So all the participant, I request you to raise your hand for the questions. Hello, Prashant. Hi. Yeah. Hello, sir. Hello, ma'am. Yeah, Hi Prashant, hello. I would like to ask, like, what is the guidance for uh, the next financial year? And are we planning to open some more stores? Like you mentioned, currently we have about 9 retail stores, right? So are we Yes. planning to open any more stores? Like, and how are we planning to fund those expansions? Uh, Prashant, is it? Prashant, of course, we really want to start more stores, but in this we have planned to start one store in Jaipur. Why I'm saying Jaipur? Because we have start quick delivery model in Jaipur also. What I'm trying to do with my stores, I try to bring the confidence of my e-commerce for my quick delivery buying people to the stores. If you talk about the company store, we have a plan of that. Apart from that, I have also, draft one franchisee model. In this, we are giving franchises, planning to start franchises, expansion through franchises, in which we have giving a offer of 0% risk for them, which is again 100% operated stores by the company. So this is the thought which I am going to do. With regard to the funds, of course, in case if we go with the franchisee, some amount has to be taken from the franchisee. And if you talk about the company funds, company start the more stores with the profits of the company with other banking facilities which we are planning to expand. So these are the things we are planning. But our main focus is on the e-commerce. Because why I'm saying this, there was a change since last 4 5 years, which I personally observed. Now the women are more working. They have a lesser time to go personally for the shopping and all that. So they want to buy through e-commerce. So that's why we are focusing more on the this e-commerce with some expansion of the store with the thought process which gives a confidence that she can have an option of changing that products. That's a uh, detailed strategy which we are planning for the company. What would be the guidance for next year, sales and profit guidance? How much we are targeting? And if we are talking about the conservative, I am looking for a 30 to 40% growth now every year because this year I try to focus of customer acquisition. Now, next, if you talk about the change of the strategy, now that process, of course, it's a continuous process, but now I feel I try to more focus on the repetition of the customers. When the business starts, initially you have to spend money for bringing the customer. Then automatically organic growth will come. So I am in last 3 years make the people used to buy the things from the woman card. Now it's a woman card to make more profits to do more stability kind of things.
for the coming next year. So I'm looking for a 40 to 50% growth in next year. Thank you so much. Thank you. We'll take the next question from Preet Shah. Hello. Hello, Hello. Preet ji. Hi, sir. हाँ Uh, जी. Thank you for taking my question. So my question was, sir, in H2, why our margins have been dipped so much? Like, what was the reason for margins going down? प्रीत, इसमें दो रीजंस रहे, मैं जो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश कर रहा था। तो वो Sure, sir. हमारा, मैंने इन 3 सालों में स्पेशली बोलूं तो मैंने कंपनी के ना इन हाउस ब्रांड्स तैयार किए हैं। क्रॉकरी के अंदर मैंने, ड्रेसेस में, फुटवेयर में, ज्वेलरी में, क्योंकि ऑनेस्टली दीज इन हाउस ब्रांड्स गिविंग मोर प्रॉफिट्स टू मी थ्रू द अदर ब्रांड कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स। क्योंकि आज अगर कंपनी की स्ट्रेंथ बोलूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि हम लोगों के जो फुटवेयर्स हैं वो हमारे स्टोर्स पे बहुत अच्छी सेल दे रहे हैं, वो हमारे वुमेन कार्ट की साइट पे दे रहे हैं, चाहे हमारी क्रॉकरी है वो अदर बिजनेस मार्केट प्लेसेस पे भी बहुत अच्छी सेल दे रहे हैं। जब मैंने इन ब्रांड्स को स्टार्ट किया तो मेरे को जैसे, इफ आई टॉक अबाउट द क्रॉकरी, तो मैं बोरोसिल को अपना रोल मॉडल समझता हूँ, मैं मिल्टन को समझता हूँ। अब जब मैं इनके साथ अपने प्राइम प्रोडक्ट्स को लेके गया, मुझे क्वालिटी तो वही लेके आनी थी जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। अब मेरे को प्राइस को लेके चैलेंज आया कि मुझे प्राइस भी ऐसा रखना है, उसको टॉप ब्रांड से 5% या 10% कम रखना है। तो उस प्रोसेस के अंदर मेरे को मार्केटिंग पे भी स्पेंड करना पड़ा, मार्केटिंग मतलब फेसबुक इंस्टा के ऊपर भी, और मुझे अपने मार्जिन शुरू में रिजनेबल रखने पड़े। एक ये रीजन रहा जिसके करके, अगर आप इफ टॉक अबाउट द थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, हमारी टॉप लाइन बढ़ी लेकिन प्रॉफिट्स उस कंपेरेटिवली नहीं बढ़े। बट ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव था। अभी इसमें जैसे जियो पॉलिटिक्स की भी एक रोल हुआ, जो ये सब शुरू हुए मिडिल ईस्ट वगैरह में। इससे क्या हुआ, हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्टील है या फुटवेयर है, इनके ना प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ी, लेकिन मैंने उसका जो बर्डन है अपने कस्टमर को नहीं दिया। बिकॉज मैं अगर हाई वैल्यू करता हूँ तो कस्टमर तक मैं शायद उतने प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचा पाऊंगा जितने मैं पहुंचाना चाहता हूँ। और जब तक प्रोडक्ट्स मेरे कस्टमर तक नहीं पहुंचेंगे तो उसको कैसे पता लगेगा कि ब्लू एक्स एक ब्रांड है, कैसे उसको पता लगेगा कि हेली एक ब्रांड है। अभी हम उस सिचुएशन में आ गए हैं। अब हमारे जो भी मैं ब्रांड्स के नाम ले रहा हूँ, सब मार्केट प्लेसेस के ऊपर दे आर सेलिंग एट ए गुड रैंकिंग, रिजनेबल, उस पे हमने मार्जिन भी अपना रखा हुआ है। तो अभी वो सेल्स जो है ना हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ होने लगी है। तो मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमको, जो हमने थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में कहते हैं ना थोड़ा जो एक स्ट्रेटेजिकल मूव लिया, उसका मुझे इस साल में अच्छा एडवांटेज मिलेगा। Got it, sir. So, sir, what type of margins you are expecting for FY27? देखो, आपको मैं एक बात बताता हूँ, दो इट्स, एक मेरा जो ब्रांड की पॉलिसी है, इफ आई टॉक अबाउट द जारा, मैं उसको इसलिए फॉलो करता हूँ, जारा के प्राइसेस ना बिल्कुल रिजनेबल है और वो थ्रू आउट द ईयर अच्छी सेल करता है। तो मुझे वुमेन कार्ट को वैसा ही बनाना है। मेरे को वुमेन कार्ट पे मैंने कभी भी 60% 70% सेल नहीं रखी, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने मार्जिन को बड़े रिजनेबल रखता हूँ। इफ यू टॉक अबाउट द ग्रॉस मार्जिन, मैं कहीं ना कहीं 30 to 40 के बीच में लैंड करूंगा ग्रॉस मार्जिन को। बिलो द लाइन एक्सपेंसेस को सेंसिबली हम स्पेंड कर रहे हैं। और एक टारगेट अगर मैं बोलूं तो आई एम लुकिंग फॉर ए टारगेट ऑफ 10 to 15% प्रॉफिट एवरी ईयर। ये एक मेरा टारगेट रहता है कि मुझे 12 से 17% का प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अचीव करना है। ये मैंने समझो एक अपने माइलस्टोन सेट किए हुए हैं कंपनी के अंदर। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी प्राइसिंग। Got it, sir. So, what type of EBITDA you are focusing, sir, for FY27? If you could like just say in number terms, it could be a round figure also. It's all okay. बीटा बढ़ेगा ही हमारा, क्योंकि देखो, मेरे को इक्विटी जितनी मेरे को रेस करने थे फंड वो रेस कर लिए हैं। अगर मैं जिस प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो मैं अचीव कर लेता हूँ और वो मेरे को कॉन्फिडेंट है, हमने वैसे ही अपना पूरा प्लान किया है, तो वो अचीव कर लेता हूँ अबीटा तो हमारा अब आने वाले साल में बढ़ेगा। अगेन इट्स
डिफिकल्ट टू गिव एनी स्टेटमेंट, बट इसमें ग्रोथ आपको हर आने वाले क्वार्टर में दिखाई देगी आपको. Sure, sir. Got it. Thank you for giving me an opportunity. थैंक यू. Thank you. We'll take the next question from Mohit. Hello, sir. Hello, ma'am. हेलो मोहित जी. And first of all, congrats for the good results and the sales growth. So I had a couple of questions. Maybe I'll start. Like, प्लीज. if we see the history, we have been adding a new and new portfolio, like in clothing also, shoes, crockery, now kids also, right? So मुझे ये यस. पूछना था कि now the next phase of 1 or 2 or 3 years, what's your strategy whether to add such more categories and what are those? Or to focus on the existing one and then how you strategize to grow those existing portfolio. इसके आप क्या ओवरव्यू आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू देखो है सर? मोहित, वुमेन, चलो यहाँ पे काफी लोग हैं, हाँ उनको जी. कंफर्ट जोन देना इज वेरी डिफिकल्ट, बट यस ओके. वुमेन कार्ड हैज डन दिस. क्योंकि हमारी टीम में आज 50% प्लस वुमेन्स हैं. मैंने जब ये हाँ जी. वुमेन कार्ड स्टार्ट किया तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे, चलो वुमेन कार्ड मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसमें कमर्शियल एंगल्स मैंने सोचे, लेकिन मैंने अपने आप को कमिट किया कि आई वांट टू डू मोर जॉब्स टू द वुमेन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर हैव ए पोटेंशियल टू वर्क. तो अभी कैटेगरी वाइज आप पूछे तो वी हैव कंप्लीट. इसके अलावा ओके. मुझे अब किसी और कैटेगरी में नहीं जाना, क्योंकि और मैं आपको, चलो आज हम लोग बैठे हैं तो वी कैन डिस्कस इट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि आपने इतनी कैटेगरीज कैसे की, क्यों की. देखो, एक तो हम्म. हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है. आज मेरी टेक्नोलॉजी में अगर 30,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे को अगर इसको 50,000 भी करने हैं या 1 लाख भी करने हैं, तो मेरी टेक्नोलॉजी मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है. क्योंकि जो हमारा ओके. इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है दैट इज गुड एनफ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एसक्यूज, पहली बात. दूसरा, मैंने ये 5 कैटेगरीज क्यों चुनी, उसके पीछे भी चलो मैं आपको एक स्ट्रेटेजिकल आंसर देता हूँ. ओके. दीज आर द प्रोडक्ट्स वेयर क्वालिटी मैटर्स, वेयर डिजाइनिंग मैटर्स, एंड यू कैन एक्वायर द कस्टमर्स. मैं, अगर आप वुमेन कार्ड के बारे में समझेंगे, हमारे अगर चाहे क्रॉकरी सेक्शन है, वहां पे हमने ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लाए कि हमने पूरी किचन को उसमें कंप्लीट कर दिया, नहीं. हमने वहां पर भी हम फैशन लेके आए हैं. अगर हमारा गार्लिक क्रैशर है ना, तो उसके अंदर भी एक कुछ आपको क्रिएटिविटी दिखाई देगी. हैंड जूसर है तो उसमें भी आपको क्रिएटिविटी दिखाई देगी. तो हमारे को सोच कहते हैं कि वुमेन्स, जो मैं अपने घर में भी एक्सपीरियंस करता हूँ, दे वांट देयर किचन आल्सो टू बी गुड. सो दिस इज द एरिया आई सेलेक्टेड. वाई आई सेलेक्टेड, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर कम थे. मेरे को यहाँ पे हम्म. प्रॉफिट मार्जिन, वैल्यू एडिशन करने का मेरे पास ज्यादा स्पेस था. मुझे 3 काम करने थे. मेरे को क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया. आज मैं जितनी भी क्रॉकरी या ड्रेसेस प्रिक्योर कर रहा हूँ, मैं डीप मैन्युफैक्चरर से प्रिक्योर कर रहा हूँ. डीप मैन्युफैक्चरर स्टेटमेंट है कि जिनकी सेकंड जनरेशन काम कर रही है, लाइक दे आर इनटू द इंडस्ट्री सिंस 50 years. उनसे मैंने प्राइजेस के ऊपर बेस्ट नेगोशिएट किया. मैंने प्रोडक्ट की पहले पहले कॉस्ट को कम किया, उसके बाद मेरे को मार्जिन मिल गया. तो मेरे को ऐसा प्रॉफिट रखा मैंने, उसमें सेल प्राइस ऐसा रखा जहां कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद भी, मार्केटिंग पे स्पेंड करने के बाद भी, मैं 50% मार्जिन के ऊपर इन हाउस ब्रांच पे काम कर ले. जो मैं ओके. 35% बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ, मुझे थर्ड पार्टी ब्रांड्स पे भी 50% मिल रहा है, लेकिन वहां पे मेरे को चलो 20% मेरे को कस्टमर को देने के बाद भी मेरे को 25% मिल रहा है. लेकिन जो मेरे इन हाउस ब्रांड्स हैं, यहाँ पे मेरे को जो वैल्यू एडिशन है 50 to 60% मिल जाता है. वो जो है ना, कंपनी को एक बड़ा बनाने में मेरी बहुत हेल्प कर रही है. तो जो कहते हैं ओके. ना, एक बिल्डिंग की जो सबसे ज्यादा मेहनत लगती है ना, वो उसकी जो स्ट्रक्चरिंग, जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर तक का जो पार्किंग एरिया है. तो वुमेन हम्म. कार्ट हैज डन दैट. नाउ इट्स टाइम टू मेक दिस वुमेन कार्ट बिल्डिंग मोर बिगर, और वो सब हमारा काम हो चुका है. तो ओके. कैटेगरी, योर क्वेश्चन इज कैटेगरी वाइज, मैं अब नहीं जाऊंगा कहीं भी. इन 5 कैटेगरीज पे ही फोकस करूंगा इन हाउस में. ऑफ कोर्स इसमें चीजें ऐड ऑन करते रहेंगे हाँ जी. विच द वुमेन्स रिक्वायर. डेफिनेटली सर. एंड सर वन वन मोर क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी पार्ट आपने टच किया. जैसे हम्म. अभी आई फॉलो वुमन कार्ड, आई डू ऑर्डर लॉट ऑफ स्टफ. मैं देखता हूँ कि हर फेस्टिवल में आपका वेबसाइट ना अपडेट हो जाता है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या जो भी, आपका पूरा थीम चेंज होता है. दैट्स वेरी गुड. ओनली वन यस. थिंग, जैसे अभी एज अ नेक्स्ट पार्ट, every company is now thinking on AI, maybe customer driven या सा रिकमेंडेशन आ जाए.
आपने आपने अभी तक वैसा कुछ बात नहीं किया। आपने बताया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपका मैं वो सॉफ्टवेयर है। आने डू यू वाला हैव था। एनी? हाँ जी, बताइए बताइए, यस, सॉरी। थर्ड फोर्थ क्वार्टर में हमने टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा स्पेंड किया है। ओके हमने एक थर्ड पार्टी कंपनी है, इट्स नॉट वाइज टू डिस्क्लोज द नेम, आई हैव ओके डन गुड मनी ऑन दैट। हमारी ओके टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही अभी टेस्टिंग की तरफ है। वो बहुत जल्दी आपको खुद को फील एंड फील होगा कि हमने उसमें कुछ नए ऐसे एडिशंस लेके आ रहे हैं, जो कई रिकमेंडेशंस लेके आ रहे हैं। मेरी भी सोच यही है वुमेन का। मेरे को जो टेक्नोलॉजी वाइज समझ में आया, ऑनलाइन में दो चीजें हैं। आपको जो एक शोरूम वॉक इन होता है ना, अगर आपने वो शोरूम उसको घर पे दे दिया वुमेन को, शी और एनी ऑफ द लाइक देयर स्पाउस वांट टू बाय, तो इट इज इजी। जैसे हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसमें एआई का पूरा ध्यान रखा गया है। ओके प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि शी कैन हैव इवन ए यू नो फील ऑफ द जो वो ज्वेलरी बाय कर रही है उस पे क्या काम हो रखा है, तो वो भी उसको दिखाई देगा। अगर उसको नेल पेंट्स के शेड्स देखने हैं तो वो भी उसको दिखाई देंगे। सो इट्स ए मोर कस्टमर फ्रेंडली जो है वो हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी डिले चल रही है क्योंकि उसका टेस्टिंग पार्ट चल रहा है। बट वी हैव रियली स्पेंड गुड अमाउंट इन थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर ऑन द टेक्नोलॉजी पार्ट। ओके, दैट्स ग्रेट टू हियर सर, थैंक यू, बेस्ट विशेस। थैंक यू जी। Thank you. The next question will go to Dipanshu Bhatia. Please unmute yourself. Yeah. Hello, am I audible, sir? यस दीपांशु, वेरी मच। Yeah. So one question is regarding the strategy of the company. Just like Nykaa has a focus and FirstCry has a focus toward children products. Okay. So we are giving a यस, lot of things on the platter. So do we want to become focused on some specific category that are giving growth or give growth in the future? So let's say you are taking 5 categories today that are very different: crockery, clothes, jewelry, and those things, and makeup items. So according to me, only makeup items can make a huge company out of women card or यस, something. Maybe jewelry can make a huge बिल्कुल company. So let's say बिल्कुल। in next 2 years, one of the two categories picked up and the other one lagged behind. So would you be focusing more on the hyper growth ones and remove the other ones, or will you stick to the thing that I want to create a diverse portfolio for everyone to shop in? Because if I have just a very young child. So if I shop for the child, I go to First Cry. My wife shops for the makeup. She goes to Nykaa, and for clothes she goes to Myntra. So it might be hard, according to me, to make an identity for all products for on women card. In future, let's say 2 category picks up and 3 doesn't. So what you will do then? देखो दीपांशु, देखो मेरे लिए मतलब बड़ा एक लेमैन की भाषा में बोलो, मेरे लिए पांचों किड्स हैं जिसमें मुझे पांचों में पोटेंशियल दिख रही है। मेरे को मैंने ये पांचों एरियाज हैं विच ए रियली वुमेन रिक्वायर्स। अब मैं तो इन पांचों पे मैंने 5 टीम बना दी अपनी कंपनी में। वो पांचों के पांचों को हम अपने बेस्ट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे नंबर ज्यादा आता है, सपोज करो हमारे को इस साल क्रॉकरी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, तो हमारा उस टीम को हम बड़ा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी एरिया को इग्नोर करूंगा, क्योंकि मेरे को जो समझ में आई है वुमेन्स की साइकोलॉजी, उसको कॉस्मेटिक पर्सनल केयर लेना है, वी हैव टू मेक द थिंग्स अवेलेबल। उसको क्रॉकरी भी लेना है, उसको फुटवेयर भी लेना है। तो आई ऑफ कोर्स विद द नंबर्स वी गिव एनलार्ज द टीम। लेकिन मैं टीम के साथ मैं इन पांचों एरियाज को कभी भी मिस आउट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एरियाज ऐसे हैं इनकी जरूरत वुमेन को पड़नी पड़नी है। भाई अगर मेरे को इन पांचों एरिया में मार्जिन भी मिल रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे ही पार्टी वेयर आता है, और इसको मैं आपको बताता हूँ, जैसे शादियों के टाइमिंग है, उस समय हमारी जो बैकएंड टीम है वो ड्रेसेस, ज्वेलरी, फुटवेयर इन पे ज्यादा फोकस करने लग जाएगी। अभी की मैं आपको बात बताता हूँ, लेटेस्ट मार्च अप्रैल मई में सेशन चेंज हुआ, तो हमने जो ज्योमेट्री बॉक्सेस, लंच बॉक्सेस, बैग्स, इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस किया। तो इंडिया की जो सबसे बेस्ट पार्ट है, थ्रू आउट द ईयर वी हैव ए सीजनल यू नो थिंग्स विच कम। भी अभी आने वाले टाइम में अगस्त में या शायद जुलाई में राखी आती है, तो आप देखिएगा हमने अभी से राखी के प्रोडक्ट्स को बाय करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, तो सब सिस्टर्स ने ब्रदर्स के साथ वो करना ही करना है। तो वो हम उसको हम पूरे साल
जो वुमेन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की सोच है हमारी। तो वी कीप मेक 5 teams for all of these categories and they work according to the requirement of the end customer. सो सर बेसिकली अगर हमें यहाँ से कंपनी की सेल्स को 20 टाइम्स करना है या 30 टाइम्स बिल्कुल। करना है, और यस। कस्टमर इज आंसरिंग कि यार ये 2 कैटेगरी मुझे अच्छी लग रही है, बट बाकी आपके पास इतनी वैरायटी, आपकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं बाकी चीजों की शॉपिंग करूं, मैं अभी यहाँ पे अभी सिर्फ ज्वेलरी के लिए आया हूँ, ठीक है। सो अगर हमें 20-30 टाइम्स करना है, सो वी हैव टू हाइपर स्केल समथिंग ना, वी कैन नॉट कैटर एवरीथिंग टू एवरीवन। तो उससे आपकी टीम भी एट सम पॉइंट यू हैव लिमिटेड पीपल, आप हर चीज पे सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर एक्सपीरियंस में भी नहीं डिलीवर कर पाओगे इफ यू कीप ऑन एडिंग एवरीथिंग, अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीपांशु। मैं इस चैलेंज को मैंने फील किया जब मैंने वुमेन कार्ड शुरू में बनाया। तो मुझे खुद ऑफ कोर्स मैंने जब अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया तो मैंने देखा मेरे को नायका भी है, मेरे साथ मिंत्रा भी है, इफ यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन। तो मुझे उस जर्नी पे जाना है, उसके लिए बढ़ना है। लेकिन आज मैंने फिर भी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपको मैं एक ऑफलाइन स्टोर की बात बताता हूँ। कई बार लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी करते हैं तो उसी का ये आंसर भी है। मैंने दिल्ली में कोहाट एक एरिया है जहाँ पे पूरी वो लेन बन गई है फॉर द बाइंग ऑफ पार्टी वियर ड्रेसेस। भाई किसी के घर में शादी है तो बड़ा क्लियर है कि कोहाट एनक्लेव जाना है। अब जो मैंने जो वहां पे यस। जब शोरूम बनाया तो मेरे लेफ्ट में कल्कि है और राइट में सूर्या है। कल्कि इस इंडस्ट्री में 25 साल से है और सूर्या जो है इस इंडस्ट्री में शायद 40 साल से है। जब मुझे वहां पे कंपटीशन करना था अपने आप को, तो मैं आज आपको एक बात बोलता हूँ कि मैंने वहां पे लहंगे कम से कम 50 लहंगे अवेलेबल करवाए। मैंने मेहंदी की 30 से 40 ड्रेसेस अवेलेबल करवाई, क्योंकि देखो वुमेन्स हैव वांट टू वैरायटी बट दे आल्सो हैव ए लिमिटेड टाइम। आप उनको अगर एक ओकेजन की 15 ड्रेसेस दिखा देते हो, क्योंकि मुझे अननेसेसरी चीजों को और भी, तो दे आर रेडी टू बाय इट। वो 15 ड्रेसेस हमारे बेस्ट डिजाइनर से आई हुई है ना, तो वी आर मेक इट कन्विंस। आप आज उस स्टोर की ग्रोथ देखेंगे। तो मैं आपको एक बोलूं कि आज कल की का कस्टमर भी हमारे पास आके कहता है, क्योंकि पता तो लग ही जाता है टीम के थ्रू, वो वहां पर भी गए वहां भी गए और फिर वो फाइनली हमारे से आके बाय कर रहे हैं। तो एटलीस्ट हमने वहां पे उतनी वैरायटी दी जो कि एक वुमेन को चाहिए। इसी तरीके से आप मेरी ये देखो कॉस्मेटिक्स में तो जितने बेस्ट ब्रांड्स चाहिए, प्रेरणा और इसकी जो टीम है वो सारे अवेलेबल करवा रही है। उसके अलावा नाइट वेयर्स में अगर आप देखेंगे, अगेन दैट इज माई इन हाउस ब्रांड्स। उसमें हमारे पास मोर देन 500 आर्टिकल्स है विच आर ऑलवेज लाइव ऑन द साइट। फुटवेयर में हम 500+ डिजाइन पे काम कर रहे हैं। तो ये बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलता हूँ, हमने हर कैटेगरी को कंप्लीट कर दिया है। तो ये ऑफ कोर्स बढ़ेगी। और जैसे जैसे हमारे को नंबर्स मिलेंगे, आपको बार बार यही क्वेश्चन है कि हम 30 टाइम्स 40 टाइम्स जाना है। मेरा तो ऑफ कोर्स यही ड्रीम है कि वुमेन कार्ड को इतना बड़ा बना दूं कि इंडिया में, चाहे इवन इंटरनेशनली, पीपल लव टू हैव ए नेम ऑफ द वुमेन कार्ड। तो वी आर मेकिंग कंप्लीट वेराइटी एंड वी कीप एडिंग ऑन। मुझे बहुत ज्यादा भी नहीं ऐड ऑन करना है। आप वुमेन को ज्यादा चीजें अवेलेबल तो वो हमको नहीं करवानी है। वी ट्राई टू मेक द थिंग बेस्ट अवेलेबल देयर। ओके, वन लास्ट स्मॉल क्वेश्चन। यस। द नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स और सेक्टर जो आपको लगता है कि अगले 3 साल में आपको बहुत बड़ा रेवेन्यू ब्लास्ट लाके देंगे, लाइक मे बी इट्स अ 2 आवर डिलीवरी, मे बी इट्स योर इन हाउस प्रोडक्ट, आपको क्या लगता है कि अगले 3 साल में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो कौन ड्राइव करेगा? अगले 2 सेक्टर हो या प्रोडक्ट्स हो, या क्या ये 2 आवर डिलीवरी है? इज इट एक गोइंग तो टू ये वर्क 2 आवर रियली वेल? डिलीवरी है, ये बहुत मैजिक है। ये अगर मैं इसको पैन इज इंडिया इट में इज इट ले गया वर्किंग, तो इज ये इट वर्किंग वेल? इट्स रियली वर्किंग वेल, वेरी वेल। ओके, ठीक है। या दिस आई इज एक्सपेक्टेड समथिंग दैट, या। बिकॉज देखो आज, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज चंडीगढ़ से कोई लेडी यहाँ पे आई है दिल्ली में डेस्टिनेशन मैरिज अटेंड करने के लिए। उसको दिल्ली की मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है। उसको कमला नगर जा पता भी होगा, उसको वो हयात होटल में रुकी हुई है, उसको कमला नगर जाने में 2.5 घंटे लग जाएंगे। वो हमारे यहाँ वुमेन कार्ट की साइट पे जाके ऑर्डर करती है, उसको 1 से 1.5 घंटे में हयात की लॉबी में हम वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है जिसको हम ग्रैब कर रहे हैं, इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अगेन मेरे को जो पोटेंशियल दिख रही है वो सबसे ज्यादा पोटेंशियल मुझे क्रॉकरी के प्रोडक्ट्स में दिख रही है, वुमेन्स किचन वेयर। क्योंकि यहाँ पे
रेपिटेशन है, यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा वैरायटी भी नहीं करनी। आज मेरे अप्रॉक्स 300 एसक्यू हो चुके हैं। अब क्या है कि वो जैसे जैसे रेटिंग्स बढ़ती चली जा रही है, जैसे जैसे वो प्रोडक्ट रीच बढ़ती जा रही है, तो वो नंबर्स बहुत बढ़ाता जा रहा है। मतलब मैं एक नंबर बता रहा हूँ आपको, आज एक लंच बॉक्स है, मैं उसके 15 लाख पीसेस बेच चुका हूँ। तो दिस इज विच गिव मोर रिजल्ट। ऐसे ही नाइट वेयर्स, ये बहुत अच्छा मुझे नंबर्स दे रहा है। तो ये वो एरियाज हैं जिसमें आपके कुछ डिजाइन अगर हिट हो जाते हैं, यहाँ पे रेपिटेशन मिलता चला जाएगा और ये चलने ही चलने हैं आगे। तो इफ यू टॉक अबाउट द टू Thank वेराइटीज, you. दीज आर द एरियाज, एंड 2 आवर डिलीवरी, ये अपने आप में मैजिक करेगा वुमेन कार्ड के लिए। Thank you. Yeah, thank you. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you. We'll take the next question from Ashuraj. Hello. Yeah, hello. Yeah. Hi. Thank you for the opportunity. I have a couple of questions. First is like the online shopping experience, right? So whenever any lady she shops online, right? She generally compares the price of a particular product that she wants to buy. So she will check in Purple, she will check in Nykaa, she will check in Women Cart, right? So how do you ensure that it's the best price in Women Cart for the same product that she gets on Purple and other online channels? आशु, your name is आशु? Yeah, Ashu. आशु, मैंने बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन था, और इसीलिए ये जो परचेज पार्ट है, मैं इसको ये बोल सकता हूँ, दिस इज 100% विच इज टेकन केयर बाय मी। मेरे बाइंग जो है, वो मेरे मतलब ऑब्वियसली मेरी आगे एक टीम है जो कि डायरेक्ट मुझे ही अकाउंटेबल है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसको मैं पर्सनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जब मैं पीएनजी के प्रोडक्ट्स को बाय करता हूँ, चाहे वो ओले की क्रीम है, मैं थर्ड पार्टी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो यार्डले है, तो देयर प्राइजेस आर थ्रू बाय मी या प्रेरणा के थ्रू, that we taken care of that, so we make an attempt कि हमारे को थर्ड पार्टी के केस में हमारी जो बाइंग है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए। दैट इज अ वन थिंग, वहां पे हमको मिलने के बाद हम आगे डिस्काउंट्स जो है पास ऑन कर पाते हैं। सिमिलरली वी हैव आल्सो एंगेज वन टीम विच कीप लुकिंग द प्राइसेस ऑफ आवर बिग कॉम्पिटिटर्स। तो हम इंश्योर करते हैं कि हम वो प्राइसेस पे सेम पे या कम पे हम चीजों को अवेलेबल करवा सके। दिस इज अ वन थिंग। इफ यू टॉक अबाउट द इन हाउस ब्रांच, वहां पर भी जितनी भी प्रिक्योरमेंट है वो मेरी और वाइफ के थ्रू हो रही है। वहां पर भी हम, मैंने वर्ड बोला, डीप प्रोडक्शन हाउसेस से हम काम कर रहे हैं। अगर हम कपड़े ले रहे हैं तो अहमदाबाद, जयपुर के जो बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज है हमारे, वहां से प्रिक्योरमेंट हो रही है। प्राइजेस को लेके वी चेक एट वन एंड एट सेकेंड एंड। हम क्यूसी पे बहुत काम करते हैं, हमारी एक टीम है जो कि सिर्फ क्वालिटी चेक कर रही है। जब प्रोडक्ट आया, मतलब इट्स ए वेरी थिंग कि आपका जो अपर है वो अगर मीडियम आया है तो उसका बॉटम भी मीडियम आना चाहिए, विच मेक्स द वुमेन कंफर्ट। ये छोटी छोटी चीजें वी आर टेकन केयर। तो प्राइजेस वाइज आई एम वेरी मच श्योर कि हमारे प्राइसेस बहुत रिजनेबल हैं। और मैं इस स्टेटमेंट को मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा, मैं एंड कस्टमर से भी लेता हूँ। मतलब जैसे मेरी जो ऑनलाइन सेल है, हमारा एक फीडबैक कॉल जाता है, मैम प्रोडक्ट रीचेज यू, यस मिल गया, आपको क्वालिटी कैसे लगी, ठीक लगी, प्राइजेस नहीं, हमको आपके प्राइजेस भी ठीक लगे। दिस इज अ काइंड ऑफ द स्टेटमेंट। ई कॉमर्स इसी तरीके से स्टोर्स के ऊपर भी हमारी एक पूरी बैकएंड टीम है जो वहां से फीडबैक लेती है। फिर मैं कई बार ऑर्गेनिक कस्टमर्स को भेज के थर्ड पार्टी के थ्रू भी रैंडमली चेक करवाता हूँ कि मेरा जो एंड कस्टमर है वो हैप्पी कस्टमर होना चाहिए। वो मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट है, वो एक ऐसा एरिया जिसको मैं पर्सनली देख रहा हूँ। एंड दे आर 5 टीम ऑफ 5 मेंबर्स, ऑब्वियसली दे ऑल आर वुमेन। उनके थ्रू मेरे को बिल्कुल टीम से मुझे सपोर्ट आता है, उनसे मुझे फीडबैक आता है। तो वी आर टेकन केयर कि हम वहाँ पे बेस्ट कर रहे हैं अपनी। So इसी में follow up है. So like when you say you personally take care, so is it technology driven? Because अगर जैसे हम companies देखें, for example Thomas Scott है, so they have inbuilt AI engines that do all these checks, plus they check कि किस product की sale ज्यादा हो रही है, they increase their inventory for those products. तो इस टाइप से AI engines है inbuilt, या it's more of manual and you are slowly ramping it नहीं up? नहीं, इट्स ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन।
इसमें हमारी जो इन्वेंट्री सिस्टम्स है वही हमारे को बता रहे हैं कि कौन सी ज्वेलरी में कौन सी कैटेगरी की सेल हो रही है, ड्रेसेस में कौन सी कैटेगरी की सेल हो रही है, वो सब कुछ है। प्लस हमने जो नई टेक्नोलॉजी पे स्पेंड किया जिसमें हम आने वाले टाइम में और एआई को ला रहे हैं, जिससे कि हमें जो एक एंड फीडबैक है वो भी हमारे को टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलना शुरू हो। Okay, thank you. So just one request. हाँ Even जी। if it's not possible कि आप quarterly results announce करें, लेकिन अगर quarterly updates देते रहे ना आप, तो it will really help the investor community. नहीं नहीं, मैं आपको एक आई एम ट्राइंग टू इंश्योर यू। देखो, इस साल हमको मेन बोर्ड की तरफ चले जाना है क्योंकि हमारे 3 साल पूरे हो जाएंगे अक्टूबर 27 अक्टूबर को। तो मेरी जो फाइनेंशियल टीम है वो सारी वो रिक्वायरमेंट्स को पूरे से अभी से देख रही है। और क्योंकि हमें जाना है तो कहते हैं हम अपने आप को बैकएंड टीम तैयार कर रहे हैं, तो हम आने वाले टाइम में आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देना शुरू कर देंगे। और इस तरह की जो सेशन जो आज इन्होंने हमारे साथ किया है, वी कीप making every quarter with you people. Okay, thank you. All the best. Thank you, जी। Thank you. Now we'll take the next question from Navneet Kumar. Hello. Hello, yeah, am I audible? Yeah. Yes, you are. Navneet, you are audible. Sir, I have one question. Like, what is the percentage of repeat customers, given we have already spent significant amount of time in acquiring customers by giving discounts? I think last 6 months, 1 year, we have spent uh, acquiring customers, right? And the second question is, a lot of our cash is stuck in inventories and receivables. So will we require another fundraise for normal operations or expansion in near future? देखो नवनीत, अभी एक तो जो कस्टमर रेपिटेशंस की बात करें तो 30 to 40% मेरे को रेपिटेशन मिलता है जो मेरे स्टोर्स हैं उन सब के ऊपर। और सिमिलरली ऑनलाइन भी हमारे को 20% से 25% का रेपिटेशन मिल रहा है। इफ और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पूछेंगे तो वी हैव ए दैट रेपिटेशन परसेंटेज इज 70%, 70 to 75%। द रीजन इज जो हमको वहां से फीडबैक मिलता है, हमारी वहाँ पे टीम है, वो ये मिलता है कि वहाँ पे ऐसी कोई इंडियन साइट नहीं है विच इज मेकिंग ऑल एथनिक अवेलेबल देयर। तो वहां पर तो हमारा रेपुटेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ पर भी इफ यू टॉक इन दिल्ली एनसीआर जहाँ पे भी हमारे स्टोर्स हैं, वी एवरी टाइम वी गेट द रिपीटेड कस्टमर्स। दिस इज ऑफ वन। सेकेंडली, मुझे आने वाले टाइम में अभी कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है अपने फंड्स को रेज करने का। कंपनी विद ओन फंड्स मेक द ग्रोथ। अब आपका क्वेश्चन था इन्वेंट्री के ऊपर, हमारा जो फंड्स जो वर्किंग कैपिटल है वो क्यों लगी हुई है। दिस आई रियली वांट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू। देखो, मेरी जब ये जर्नी शुरू हुई तो इसमें थर्ड पार्टी ब्रांड्स के साथ मैंने शुरू किया। लेकिन मुझे बहुत जल्दी पता लग गया था कि अगर मुझे कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाना है, कंपनी में प्रॉफिट्स लाने हैं, तो मुझे इन हाउस ब्रांड्स को डेवलप करना चाहिए। एंड विद दैट थॉट प्रोसेस आई स्टार्टेड डेवलपिंग माय इन हाउस ब्रांड्स। तो आज अगर आप कंपनी की, कई बार लोग पूछते हैं, वुमेन कार्ट ने अपने आप को एक एग्रीगेटर के रूप में लेके आया 3 सालों में, और प्लस वुमेन कार्ट ने इन हाउस ब्रांड्स डेवलप किए विच आर डूइंग गुड इन द मार्केट प्लेस। अब मैंने ये जब ब्रांड्स लिए, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सर आपने कॉस्मेटिक्स में क्यों नहीं अपने आप को डेवलप किया इन हाउस ब्रांड्स। वहां पर ना बहुत कंपटीशन था, वहां पे आपको बहुत सारी वैरायटी रखनी थी। अगर आज आज मेबलिन या लैक्मी की बात करें तो उनके 130 एसक्यूज हैं। तो वो एक रीजन था, मैंने कहा मुझे उस एरिया में नहीं जाना। मैं उन एरियाज में गया जहाँ पे कि ऑर्गेनाइज प्लेयर कम प्लेयर थे। तो when इट रियली वाज ए राइट डिसीजन फॉर मी। बट यहाँ पे जो मेरे साथ एक चैलेंज आया, शुरू में मैंने वुमेन कार्ट स्टार्ट की ई कॉमर्स। आज मैं इसको क्विक डिलीवरी ले गया हूँ दिल्ली एनसीआर में। अब क्या होता है, अब मुझे अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। आज मेरे पास लगभग 6 डार्क स्टोर्स हैं जिसका जिसमें अप्रॉक्स 50,000 के एरिया है। सपोज करो एक ऑर्डर हमारा वेस्ट दिल्ली से आया, तो वो वेस्ट दिल्ली का जो स्टोर है वो उसको वहां से हमारी टेक्नोलॉजी उसको फेच करेगी और उसको वो अवेलेबल करवाएगी। तो अभी इसका मतलब मुझे वेस्ट दिल्ली में भी अपनी इन्वेंट्री रखनी है, नॉर्थ दिल्ली में भी रखनी है, मुझे हर जगह पे वो इन्वेंट्री अवेलेबल करनी है। भाई, आप आज डोमिनोज क्यों
है, क्योंकि वो कहता है कि मैं 30 मिनट्स में आपको डिलीवरी दे रहा हूँ। तो मुझे वुमेन कार्ड को जो कस्टमर, जिससे हैप्पी कस्टमर आ रहा है, वो यही कह रहे हैं कि हमने अभी ऑर्डर किया और हम 2 घंटे हायर टाइम है, हम कभी कभी 1 घंटे में, कभी कभी 45 मिनट्स में भी प्रोडक्ट को डिलीवर करवा देते हैं। अब इसमें जो एरिया मैंने पकड़े, चाहे वो फुटवेयर पकड़ा, चाहे मैंने ड्रेसेस पकड़ा, ड्रेसेस में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमने पार्टी वियर ड्रेसेस पे फोकस किया। पार्टी वियर ड्रेसेस नॉर्मली कस्टमर्स को जब वो बाय करती हैं तो उसको 1 या 2 दिन का टाइम लिया जाता है टू मेक दैट आउटफिट रेडी फॉर अकॉर्डिंग टू हर साइज। लेकिन हमने उसको भी 5 साइजेस में अवेलेबल करवाया हुआ है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 2 XL। फुटवेयर के अंदर 6 साइजेस है, 36, 37, 38, 39। अब ये जो मैंने कैटेगरीज पकड़ी, इसमें मेरे को इन्वेंट्री रखनी ही पड़ेगी भाई आज, क्योंकि मैं आज अपनी इन्वेंट्री पूरी तरह से मैं हैंडल कर रहा हूँ। और ये वो इन्वेंट्री है जो कि फैशन ड्रिवन इन्वेंट्री है। अगर आपको मुझे ज्वेलरी भी रखनी है, एक नेकलेस का सेट है जो हमें पता है कि कस्टमर पिक करेगा, तो मुझे उसके पीछे 24 पीसेस रखने पड़ेंगे। तो ये एक रीजन था जिसके करके मेरे फंड्स, जो कंपनी की जो फंड्स है वो इन्वेंट्री में है। बट यही एक रीजन है जो कि मुझे अच्छी सेल्स ला के दे रहा है और आने वाले टाइम में ग्रोथ भी देगा। So this is the way we make strategically plan of all this. Hello? Sir, I have a follow-up question. Yes. Regarding this, there are, sorry, uh, I wanted to ask about this repeat customers. Like, how many of the new customers we have acquired in last 6 months? Like you said, a lot of 30% 30% customers are new. So how much we are acquiring unique customers? देखो, आप अगर मैं एक बार वो एग्जैक्ट डाटा देख लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से Approximately 13 lakh orders in last year. Unique customer we will to check. 3-4 लाख तो है ही है, तो मिला के 13 lakh तो is the unique orders. 15 लाख ऑर्डर वी हैव डन। तो उसमें से हम 3 से 4 लाख की, दो फिगर हैव टू बी अगेन चेक, हमारे को रेपिटेशन मिल रहा है। आप एक चीज समझिए, ब्लू एक्स इज ए वन ब्रांड विच इज डूइंग फैंटास्टिकली ऑन प्लेटफॉर्म्स। अब हमारी वहां पे इतनी रेटिंग बढ़ती चली जा रही है, आज हमारे को वहां पे इवन हमारे को, अब देखो हमारे को ब्लू एक्स के ऑर्डर्स हमारी ब्लू एक्स की साइट से भी आ रहे हैं, हमको अमेजोन से भी आ रहे हैं, हमको वुमेन कार्ट से भी आ रहे हैं। तो हमारे को हर कॉर्नर से अगर उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हमारे को वहां पे हमें खुद को भी ऑब्जर्वेशन आ रही है कि रेपिटेशन कस्टमर हमसे ले रहा है। उसने पहले एक ब्लू एक्स का एक प्रोडक्ट लिया, उसने दूसरा भी प्रोडक्ट लिया। तो दैट इज, वी आर विजिबल ऑनलाइन स्टोर्स पे। तो मैंने आपको बताया हमारे को 40% का रेपिटेशन कस्टमर है। ऑनलाइन भी हमारा कस्टमर 30% लेके चलिए रिपीट हो रहा है। तो हम 15 लाख ऑर्डर अगर हम कह रहे हैं हमने किया, तो हमने 3 लाख जो है उसमें रिपीटिशन है हमारा। Okay. I have one follow-up question. Why do we have our own delivery agents? Why not we are using leveraging the existing hyperlocal delivery service providers? यहाँ पे हमें खुद डिलीवरी एजेंट्स रखने की क्यों जरूरत है? मैं इसका बहुत अच्छा आंसर, देखो देखो, मैं ना वुमेन कार्ड के साथ अभी बहुत ही केयरफुली चल रहा हूँ। देखो, डिलीवरी जो स्टाफ है उन सब की हमारी HR टीम प्रॉपरली मिलती है, वेरिफिकेशन करती है, उनके घरों तक हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे डिलीवरी कस्टमर है, क्योंकि वुमेन्स आज बहुत कुछ मंगवा रही हैं फॉर देयर पर्सनल केयर एंड ऑल दैट, तो आई वांट इट इज टू बी डिलीवर्ड वेरी सेफली। जो आपका ये वाला थॉट है, मैं इस बैकएंड में इस मैंने अपनी एक टीम को इसके ऊपर काम करने को बोला हुआ है कि मैं उस चीज को कैसे इंश्योर करूंगा कि वो जो थर्ड पार्टी है उसकी जो टीम है वो डिसेंट हो, डिसेंट इन द सेंस दे गो टू द वुमेन एंड यू नो गिव द डिलीवरी सेंसिबली। तो मैं अभी उसके ऊपर जरूर काम जरूर कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो आई एम गोइंग टू डू थ्रू माई ओन टीम जस्ट फॉर द रीजन ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिसेंटली। What? I have one more question. When can we expect our first franchisee store? अब इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बट आई वांट टू डू फेयर विद माय फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में जो मेरी पास्ट एक्सपीरियंस कहता है
बहुत कंपनीज ने स्टोर खोले, लेकिन वो कई बारी खुले भी और बंद हो गए। मैं फ्रेंचाइजी स्टोर्स वहां खोलना चाहता हूँ, जो मेरे को स्टोर्स को लेके आज एक्सपीरियंस है, जो राइट प्लेस को खोलने का, जहाँ पे आज हमारे दिल्ली के जितने भी स्टोर्स हैं, कभी आप लोगों को मौका मिले तो वो उन जगहों पे है जहाँ पे कि वुमेन्स का ऑलरेडी फुटफॉल है। आप एक ऐसी जगह पे स्टोर खोल देंगे जहाँ पे वुमेन्स का फुटफॉल नहीं है, तो इट विल बी बर्डन फॉर द फ्रेंचाइजी, इट विल बी बर्डन फॉर द कंपनी। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ क्वेरीज, बट कॉन्सिडेंटली मुझे वो राइट सिलेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं मिल पा रहा जहां से कि चीजों को अच्छा ले जाया जा सके। दैट इज द ओनली रीजन। So it could be done anytime. I'm more looking for, but again, I'm looking for place which is good for the store to be open. क्योंकि वुमेन्स के ना एक थॉट प्रोसेस रहता है कि उसको अगर बाइंग करना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कोहाट एंक्लेव, तो वो पार्टी वेयर के लिए वहीं जाएगी। अगर उसको डेली वेयर के लिए लेना है तो वो अपनी लोकल मार्केट में बाय करेगी, और वो वहां पे बाय करना प्रेफर करेगी जहाँ पे ऑलरेडी 8 या 10 स्टोर्स हो, जहाँ पे उसका ऑलरेडी जाना होता है। तो आई एम लुकिंग फॉर द राइट प्लेस। थोड़ा सा मैं बिलीव करता हूँ वास्तु में भी, तो वो भी मुझे एक कई बार एक लिमिटेशन आती है। स्टिल आई एम वर्किंग, लॉट्स ऑफ क्वेरीज आर कमिंग एंड वी आर ट्राइंग टू गेट इट डन। Yeah. Thank you so much. Thank you for the answer. थैंक यू जी। Thank you. We have the next question from Mukesh. Hello. हाय सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। सर मुझे ये बताइए कि जैसे FY26 में हमारी जो टोटल सेल रही है वो 134 करोड़ है, इसमें यस, से कितनी ऑफलाइन है? वी हैव अप्रॉक्स 50, more than 50% is online हम्म and 20% is from our stores. And another area which we work in this year is B2B, and 20 to 25% is from the B2B. B2B, तो B2B में सर हम किसको दे रहे हैं, मतलब ये थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? बिल्को उन उन स्टोर्स पे, उन शॉप्स पे उनको दे रहा हूँ जो कि उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे क्रॉकरी है, तो जहाँ पे ऐसे जगह है जहाँ पे क्रॉकरी की बाकी वैरायटी बिकती है, बाकी ब्रांड्स बिकते हैं, तो मैं उन पे भी काम कर रहा हूँ। अगर हम ड्रेसेस की बात करेंगे तो हम उन अच्छे होलसेलर्स को दे रहे हैं हु आर मेकिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर ब्रांड्स। तो हमने वहां पर भी काम शुरू किया विद द थॉट प्रोसेस कि हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपेंशन हो, सेल्स बढ़े। मतलब ये आप ओन ब्रांड्स ही देते हैं बेसिकली? ओन ब्रांड्स, यस, ओनली। ठीक है। और जो ये रिसीवेबल डेज हैं, करीब करीब मैं देख रहा हूँ करीब 35-40 डेज का, तो उसका रीजन यही होगा, इन यस, B2B बिजनेस के कारण ही रिसीवेबल डेज, अदरवाइज आपका ऑनलाइन और बाकी जो रिटेल ऑफलाइन है ओन उसमें तो कोई स्टोर्स, रिसीवेबल डेज नहीं है। यस ठीक यस। है, ठीक है। अच्छा सर, अब एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर पिछले H1 में देखा जाए तो हमारे जो ग्रॉस मार्जिन्स थे वो करीब 40% थे। यदि हम हम्म। पिछले साल के H2 में भी देखते हैं तो 41% थे। अभी वो घट के बिल्कुल 21% आ गए हैं। ये इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें आप प्लीज। बस वो मैंने आपको बताया, मैंने ना कई कंपनियों का एक्सपीरियंस देखा, उन्होंने अपने पास चीजें रखी और वो एक माइंडसेट के साथ बैठे रहे कि यार हमें तो इतना प्रॉफिट चाहिए। मेरे को लगा नहीं है, लेट द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द पीपल। अब देखो, कोई भी ब्रांड कस्टमर के जब हाथ में पहुंचेगा तभी तो वो उसको रिपीट करेगा। तो आज कई बार आप देखते होंगे ब्लिंकिट्स वगैरह पे लोग नए कोई ब्रांड्स आते हैं, वो फ्री प्रोडक्ट्स बांट देते हैं, तो मैंने वो नहीं किया। बट यस, मैंने थोड़े से अपने मार्जिन्स को ना कम स्क्वीज किया। प्लस मैंने मार्केटिंग जो फेसबुक इंस्टा पे स्पेंडिंग बढ़ाई। दूसरा, अभी एक जो थर्ड फोर्थ क्वार्टर में ये जो जियो पॉलिटिक्स के करके कुछ प्रोडक्ट्स की ना कॉस्ट बढ़ी, लेकिन मैंने वो बर्डन कस्टमर को नहीं दिया। यही टाइम था जब मैंने कस्टमर्स को एक्वायर कर लिया, क्योंकि बाकियों ने प्राइसेस बढ़ाए थे, मैंने वो बढ़ाए नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इस क्वार्टर में थोड़े कम मार्जिन पे हम काम करते हैं, लेट द प्रोडक्ट रीचेस टू मोर पीपल। भाई आप मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हो, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक ही नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि to make the product available at a reasonable price is also a marketing cost, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो वही हमने
थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में किया, और ऑनेस्टली उसका एडवांटेज हमें अब आने वाले टाइम में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की रेटिंग्स, कस्टमर रेपिटेशन वो बढ़ता चला जा रहा तो सर अब H1 की बात करें या आने वाले H2 की भी बात करें, तो है। किस तरह के मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या पुराने मार्जिन रहेंगे या पुराने और नए के बीच में ही कहीं हमारे बीच मार्जिन में, रहेंगे? एग्जैक्टली अगर आप सही बोले, मैंने अपने आप को बॉटम को छू लिया है। अब मेरे वापस से मार्जिन धीरे धीरे बढ़ेंगे, बट मैं बहुत ग्रेजुअली बढ़ाऊंगा। मुझे ना कस्टमर को तकलीफ नहीं देनी है। आपको मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम बताता हूँ, वो क्या करते हैं, आपको 49 का प्रोडक्ट है, उसको 275 कर देते हैं, 20 रुपए 25 रुपए बढ़ा देते हैं, और वो कस्टमर को भी नहीं फील होता है, और वो कस्टमर उसको इजीली अब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो आने वाला टाइम अब मेरा वही टाइम है, व्हेन आई स्टार्ट ग्रेजुअली हम्म लिटिल बिट इम्प्रूविंग द मार्जिन्स, ताकि हम्म जो कस्टमर है, मेरा रेगुलर कस्टमर है, उसको फील भी ना हो, और कंपनी विल अगेन कम इनटू मोर बेटर हम्म स्ट्रॉन्गर ट्रैक। दैट इज अ थॉट प्रोसेस। गॉट इट, गॉट इट। और सर अब जैसे हमारा इन्वेंट्री डेज मैं देख रहा हूँ 230 डेज है, आपके SKUs भी बहुत ज़्यादा हैं, 30,000 प्लस SKUs हैं। तो हम्म। अब इसमें कुछ स्लो मूविंग इन्वेंट्री होगा, कुछ फास्ट मूविंग होगा, कुछ काइंड ऑफ डेड स्टॉक भी पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ SKUs इतने ज़्यादा हैं। तो उसको आप कैसे डील करते हैं? जो जो आपने लास्ट टर्म बोली ना, वो तो मैं होने नहीं देता, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बहुत केयरफुली हैंडल कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं भी कुछ भी लगता है जिस प्रोडक्ट में इतनी पोटेंशियल नहीं है, अगर मैं इन हाउस ब्रांड्स की बात बोलता हूँ, तो मैं हम्म उसको दूसरे प्रोडक्ट के साथ एज ए कॉम्प्लीमेंट्री या कैसे एज ए हम्म सेल बूस्ट अप करने के लिए दे देता हूँ। रह गया थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी में मेरे सबके साथ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि सपोज मैं एक ब्रांड के 40 SKUs बेच रहा हूँ, उसमें से हम्म 30 SKUs आर मूविंग वेरी गुड, जो 10 SKUs नहीं मूव हो रहे हैं, तो वो ब्रांड इज कमिटेड टू रिप्लेस दैट प्रोडक्ट्स विद द दैट 30 प्रोडक्ट्स। तो हम्म वहां पे मेरा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है। तो हम्म दैट वे एम टेकन केयर कि कंपनी के एक एक चीज को हम संभाल के रखें और उसको केयरफुली मूव ऑन करें। ठीक है, ठीक है। और सर हमारे अभी 9 फिजिकल स्टोर्स हैं, तो यस, इसमें से कितने प्रॉफिटेबल हैं? देखो एक ना स्टोर जब खुलता है ना, हम्म उसको ब्रेक इवन जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के लिए किया है, वो 1 साल लग जाता है उसको ब्रेक इवन राइट। आने में, लेकिन उसको भी मैं कोशिश करता हूँ 9 मंथ्स 10 मंथ्स में। क्योंकि जब हमने पहला स्टोर खोला, कुछ चीजें स्ट्रेटेजिकली समझी, सेकंड खोला, उसमें आपने उसको और इम्प्रूव कर लिया। तो हम्म अभी आप मेरे सारे स्टोर्स की अगर बात बोलें, हमारे एक रोहिणी में स्टोर खुला है, जिसको अभी शायद 6 मंथ्स हुए हैं। अपार्ट हम्म फ्रॉम दैट, all my stores are working on profitable. ओके। और सर आने वाला आपका जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? मतलब आप कितने स्टोर्स का आपका टारगेट है आने वाले 1 साल में? और ये जो आपका ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन है, इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या 50-50 ले जाना चाहते हैं, ऑनलाइन ही आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा? I think the management line got disconnected, ओके। but I think due to time constraint, we will take this as the last question. तो shall I wait or Yeah, I will just wait. We'll wait for the management yeah? to come.
Hello, Prayasi. Sorry for connecting. Hello, sir. Yeah. Yeah. Hello, everyone. Sorry for this break. Sorry. Yeah. Yes, sir. Shall I continue with the question? Yes, please. या सर मेरा क्वेश्चन है कि आने वाला आपका जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? हमारा फोकस ऑनलाइन पे ज़्यादा रहेगा, ऑफलाइन पे ज़्यादा रहेगा, और आने वाले 1 साल में हम कितने स्टोर्स करना चाहते हैं? देखो, मेरा फोकस ऑनलाइन पे ही ज्यादा है, हम्म उसी पे ही मेरा फोकस रहेगा, बड़ा क्लियर है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है इस ऑनलाइन को जितना ज्यादा हम क्विक डिलीवरी पे फोकस कर पाएंगे उस पे करेंगे। स्टोर्स लाएंगे जरूर, वो कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने के लिए कस्टमर के। और देखो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कस्टमर्स स्टोर्स पे जाके बाय करता है। जैसे जैसे ही ड्रेस या ज्वेलरी की जो प्राइस है 15,000 से ऊपर जाएगा, तो वो वुमेन जो है वो प्रेफरेबली गो एंड बाय फ्रॉम द स्टोर। बट स्टोर हैज टू बी ओपन एट ए राइट प्लेस। ये ना, मैं आपको बार बार इस बात पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सही लोकेशन पे स्टोर खोलना जो है वो बहुत जरूरी है। तो आई एम टेकन केयर ऑफ दैट। जहां मुझे सही लोकेशन मिलेगी तो डेफिनेटली आई गो फॉर द स्टोर। बट अगेन, ऑफलाइन ही जो ऑनलाइन है उसी पे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वुमेन्स आर मोर वर्किंग, दे हैव लेसर टाइम। इफ वंस वी they have a confidence on the brand, they prefer to buy through online. गॉट इट सर, थैंक यू सो Thank मच। you. Thank you. So, due to time constraint, we will take this as a last question. Sir, would you like to give some closing remarks? Is another question is come? No, sir. All done. Thank you. Yeah. Thank you everyone for giving time. With regard to the roadmap, we are looking in next 3 years this quick delivery model in more cities. And of course, after the growth of this Australia, we also have a plan of going another country where more Indians are there. So this is the coming roadmap of the this women card. And again, we are focusing on giving quality products and making our customers happy customers. वो कहते हैं इसको, इस जर्नी को और आगे जाने में समय लगेगा, लेकिन इसकी जो फ्यूचर है, इसका जो ग्रोथ चार्ट है वो कंसिस्टेंट रहेगा और आगे जाएगा काफी आगे तक। Thank थैंक यू। Thank you, participant, for joining the call. Thank you, management. Thank you, sir. थैंक यू जी। Thank you, sir.